سبسکرائب کریں ہمارے یوٹیوب چینل نورانی دنیا کو، اور بیل آئیکن کے نوٹیفیکیشن کو آل پہ سیٹ کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میں اللہ رب العزت کا کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں جو مجھے اور آپ حضرات کو اس طرح کی محفل عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ ایسی محفلوں میں آنا یہ مقدر والوں کا کام ہے۔ اس طرح کی محفلیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیشہ اس طرح کی محفل سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اب چونکہ وقت تو کافی زیادہ ہو چکا ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا میں۔ آپ نے مجھ سے پہلے بہت پیاری نصیحت امیز باتیں مفتی صاحب سے سماعت فرمائی۔ چند ہی منٹ آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ نعت پاک بھی آپ نے سماعت فرما لی، خطاب بھی آپ نے سماعت فرمائے۔ دعا ہے اللہ رب العزت مفتی صاحب کی آواز میں اور ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ بہت پیارا کلام پڑھا ہے، دل خوش ہو گیا خدا کی قسم۔ جو نعت کا حقیقی حق ادا کرنا ہے نا، وہ یہی حق ہے۔ یوں تو نعت والے بہت سارے ہیں، دنیا نے ایک ذریعہ بنا لیا ہے، نعت پاک کو یا تقریروں کو ذریعہ بنا لیا گیا ہے، لیکن نعت پاک کا حقیقی حق جو ادا کیا مفتی صاحب نے ادا کیا، دل خوش ہوا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ایمان تازہ ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ایمان تازہ ہے۔ آج کے دور میں مفتی صاحب نے بتایا نا، ہمارا جو ایمان ہے بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اگر ہم کو درود پاک پڑھنے کا کہا جائے تو ہم سر نیچے رکھتے ہیں۔ اگر ہم کو کوئی سلام کرے، ہمارے منہ میں ایسا جیسے مہر لگ گئی ہے۔ آپ کو پتا ہے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اذا سلم المسلم علی المسلم، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کو سلام کرتا ہے، فرد علیہ، سامنے والا اس کو جواب دے دیتا ہے، سلمت الملائکۃ 70 مرۃ، اس جواب دینے والے پر اللہ کے فرشتے 70 مرتبہ سلام بھیجتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی فرمایا فَلَمْ يُرِدْ عَلَيْهِ، اگر وہ جواب نہیں دیتا تو 70 لعنت دیتا۔ بے شک۔ اسی لیے ایک امام، بہت بڑے امام ہیں، وہ ایک محفل سے گزرے، محفل کو سلام نہیں کیا۔ جب سلام نہیں کیا گزر گئے، ایک مرید نے پوچھ لیا حضرت سلام کرنا سنت ہے، آپ نے مومنوں پر سلام نہیں کیا اور سلام کی بہت فضیلتیں ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے علم دین پڑھا ہے، میں نے حدیث بھی پڑھی ہے، مجھے معلوم ہے سلام کرنا سنت ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے، اور واجب کا ترک گناہ کبیرہ ہے۔ ایک بات یہ بھی اور ایک حدیث یہ بھی پڑھی جو میں نے ابھی بتائی، کہا مجھے اس بات کا خوف رہتا ہے میں سلام تو کر دوں لیکن اگلا جواب نہیں دے گا تو اس پہ لعنت برسے گی اور وہ گناہگار ہوگا۔ اس لیے جب سلام کیا جائے تو کم سے کم جواب دے دینا چاہیے، اور مسلمان کا ایک شعار، مسلمان کا ایک طریقہ ہونا چاہیے، جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ملے اسے سلام ضرور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے۔ اسی طرح آپ نے مجھ سے پہلے سید صاحب سے ایک درود پاک کے تعلق سے بھی
10 मिनट या 20 मिनट जितना वो बोले। दरूद पाक पर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जिक्र की। आज हमारा ईमान इतना कमज़ोर हो गया, हमारे इल्म में इतनी कमी आ गई है। हालांकि कहीं भी हम दरूद पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलाम अलैहि, पढ़ने वाले 2 होंगे, एतराज़ वाले 3, पूछने वाले बहुत सारे होंगे। मैं तो अल्लाह का एक शुक्र ये अदा करता हूँ कि हम बरेलवी लोग जो हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे अंदर इल्म रखा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसी भी महफिल में बरेलवी चला जाए ना, अगर वो कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, जो बरेलवी के खिलाफ है, जो मुखालिफ है, वो कहता है मौलवी साहब ये कहाँ लिखा है। मुझे कुरान की आयत याद आ जाती है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। अहले इल्म से पूछो अगर तुम नहीं जानते हो। मैं समझ गया जब मैंने अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह कह लिया, देवबंदी अपने आप को कम इल्म समझकर बरेलवी को आलिम समझ के पूछ रहा कहाँ लिखा है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कहाँ लिखा है? और मैंने कहा मैं बताता हूँ, कुरान में है इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी। अल्लाह और उसके फरिश्ते दुरूद भेजते हैं नबी पर। और आगे अल्लाह ने क़ैद लगाई, वो पढ़ने वाले नहीं, एतराज करने वाले नहीं, चूं चरा करने वाले नहीं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बेशक सुभान अल्लाह। ईमान वालों तुम भी अभी अपने नबी पर दुरूद पढ़ो, इसलिए हम पढ़ते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब फिर फौरन पलट के कहते हैं बुखारी शरीफ में तो हदीस ये आई है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ना चाहिए। आप लोग अस्सलातु वस्सलाम ने कहाँ से निकाल ले? मैंने कहा बुखारी बाद में है, कुरान पहले है। बुखारी बाद में, कुरान पहले है। पहले कुरान से पूछे। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, सल्लू अलैहि, दुरूद पढ़ो, व सल्लिमू तस्लीमा, और सलाम खूब खूब पढ़ो। बेशक सुभान अल्लाह। आओ दुरूद इब्राहिमी में दुरूद तो है लेकिन सलाम नहीं है। अगर कुरान के मुताबिक अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हो, हर बात पर कुरान कुरान की रट लगाते हो, तुम्हें सल्लू ही याद आया, सल्लिमू तस्लीमा क्यों भूल गए? इसलिए हम कुरान के मुताबिक अस्सलातु कह के सलात भेजते हैं, वस्सलामु कह के सलाम भेजते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब फिर एतराज, आपने या रसूल अल्लाह कह दिया, हालांकि ये बड़ा गिरा हुआ एतराज है। आप या रसूल अल्लाह कहते हैं, यहाँ से सलाम पढ़ते हैं खड़े होकर, नबी मदीने में है, आप यहाँ हैं, इतने दूर से सलाम कैसे सुन लेंगे? मैंने फौरन पलट के कहा तेरा एतराज अपनी जगह, नबी मदीने में, हम यहाँ इतनी दूर से कैसे सुनेंगे? मैंने कहा कौन सुने? कहा नबी इतने दूर से कैसे सुनेंगे? फिर कौन सुनेगा? बोले दूर से तो अल्लाह सुनता है। दूर से बोलिए, दूर से अल्लाह सुनता है। मैंने कहा ये तेरा अकीदा है, मेरा नहीं। ये तेरा अकीदा है, मेरा नहीं। मैंने कुरान पढ़ा है, दूर से अल्लाह नहीं सुनता। अल्लाह कहता है वन्नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, बंदे मैं तो तेरी शाह रग से भी ज्यादा करीब हूँ। और ये कैसे मुल्ला अल्लाह को दूर समझ रहा है? अल्लाह दूर से सुनता है। अल्लाह तो शाह रग से ज्यादा करीब है। और जब मुस्तफ़ा की बारी आई, हम मुस्तफ़ा को सिर्फ मदीने में ही नहीं मानते। हाँ ये हक है, मुस्तफ़ा ने जिंदगी मदीने में गुजारी है, ये हक है। मुस्तफ़ा जाने रहमत का मज़ार मुक़द्दस मदीने में है, लेकिन कुरान कहता है अन्नबिय्यु औला बिल मोमिनीना मिन अनफुसिहिम, नबी तो हर मोमिन के जान से भी ज्यादा करीब है। बेशक सुभान अल्लाह। नबी को हाजिर और नाजिर मान के कहते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये तो मोमिनों का हक है जो सलाम पढ़ेंगे, ये तो मोमिनों का हक है जो दुरूद पढ़ेंगे। गौसे आजम की तालीम तो यही है। गौसे आजम के प्रोग्राम में आए हो ना, मंसूब गौसे आजम से है। गौसे आजम ने अपनी पूरी जिंदगी शरीयत मुस्तफ़ा में ढाली।
आओ दरूद पाक पढ़ने वालों की और दरूद पाक की एक शान सुनाकर थोड़ा आगे चलो, इतना वक्त नहीं है। नबी पाक अलैहिस्सलातु व तस्लीम सफ़र कर रहे थे, कुछ सहाबा साथ में थे। एक मकाम पर पहुंचे, साए में बैठे, सरकार ने कुछ खाना तलब किया, सूखी रोटी पेश की गई। आज हमें तो कई सालन साथ में ना हो तो पता नहीं कितनी गालियां बीवी को बकते हैं, और उसमें नमक ना हो, कुछ ना हो तो पता नहीं क्या क्या हम बातें कह देते हैं। सरकार के पास सूखी रोटी पेश की गई। सरकार जो ही सूखी रोटी तनाउल फरमाने लगे, इतने में एक मक्खी आ गई। मक्खी सरकार के चेहरे का दीदार भी कर रही है, आवाज भी लगा रही है। ये तो मुझे तुझे पता नहीं कि मक्खी क्या कह रही है, लेकिन नबी तो नबी हैं, वो हर चीज की बोली जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ने हज़रत अली को बुलाया, कहा इस मक्खी ने शहद बनाया, इसके साथ चले जाओ, शहद लेके आओ। हज़रत अली ने गया, शहद निकाला, लाया, सरकार को दिया गया। आप सबने शहद खाया क्या नहीं? शहद बड़ा मीठा होता है, बड़ा प्यारा होता है। जब खाना तनाउल फरमाया, रसूल करीम ने पूछा है मक्खी, हालांकि रसूल को पता था, लेकिन रसूल करीम उम्मत को दर्स देना चाहते हैं। बेशक, ये शहद तू बनाती किस चीज से है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे अंदर एक सरदार मक्खी है, उसने हमारी ड्यूटी लगा रखी है। कोई पानी लाती है, कोई फीका रस वाला फूल, कोई मीठा, कोई खट्टा, कड़वा, हर तरह के फूल का रस लेके आती है। सब हम जमा करते हैं अपने छत्ते में, और हमको हुक्म है रब की तरफ से, पूरी रात मोहम्मद अरबी पे दुरूद पढ़ते हैं। बेशक, सुभान इस अल्लाह। दुरूद की बरकत से ये शहद मीठा हो जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस दुरूद की बरकत से ये शहद मीठा हो जाता है। अब हम गुलाम कैसे हैं? वो मक्खी होकर दुरूद पढ़े, कड़वा मीठा हो जाए, फीका मीठा हो जाए, हम दुरूद पढ़ें तो क्या हमारे मुकद्दर नहीं जागेगा? इमाम सुयूती अलैहि रहमा अपने मुजर्रबात में एक शहद का तजर्बा जिक्र करते हैं। फरमाया, असली और नकली शहद पहचानने के लिए, आज आपको भी असली और नकली मौलवी पहचानने के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई गैर मगदूब पढ़ा तो बोले यही बरेलवी है, कोई मगजूब बोले यही देवबंदी है, इतनी पहचान रखी। फरमाते असली और नकली शहद पहचानना हो, एक पहचान बता रहा हूं। शहद को रोटी पे लगाओ, एक कुत्ते के सामने डाल दो जो 3 दिन का भूखा हो। अगर कुत्ता शहद वाली रोटी खा लेगा, शहद नकली है, अगर नहीं खाएगा तो शहद असली है। इमाम सयूती फरमाते हैं, ये जब तजर्बा लिखा ना मुजर्रबात, कुत्ता शहद वाली रोटी नहीं खाता। मैंने पूछा, कुत्ते तू शहद वाली रोटी खाता क्यों नहीं? फरमाया, मौलवी साहब पढ़ा नहीं है, इस पर दुरूद पढ़ा जाता है, दुरूद वाली रोटी कुत्ते नहीं खाते हैं। आज भी एतराज होता है ना, वहां फातिहा पढ़ते हमारे लोग बोलते हैं दुरूद पढ़ लिया जो रोटी पे, कहाँ लिखा है? कहा दुरूद वाली चीज कुत्ता नहीं खाता, मोमिनों का हक होता है। बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए दुरूद पढ़ना चाहिए, दुरूद से गुनाह मिटते हैं, मुकद्दर जागते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज आप महफिल गौसे आजम में आए हैं, आओ गौसे आजम की तरफ थोड़ा सा अपना रुख ले जाएं। गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु आपके वालिद और आपके नाना जान, वालिद भी वली, नाना भी वली। फरमाते हैं, बहुत सारे आपने वाक़या सुने, अक्सर सुनते रहते हो, किताबों में पढ़ते रहते हैं, उलमा पढ़ते हैं। फरमाते हैं, गौसे आजम के वालिद सफर कर रहे थे, एक दरिया से पार होने लगे कि एक सेब आया, दरिया में गिरता हुआ, आपने पकड़ा, सेब अच्छा लगा, खा लिया। खाने के बाद फौरन सोचा, मैंने सेब तो खा लिया है, अगर कयामत में इसी की पकड़ हो गई तो, क्योंकि बगैर इजाजत के खाया था। मैंने सेब तो खा लिया, बगैर इजाजत के खाया, न जाने मालिक कौन था, अगर पकड़ हो गई तो। बस इसी सोच में जब परेशान हुए, पलटे पीछे, वापस आए, देखा कि एक दरख्त है जिसकी शाखें पानी में है और सेब गिर रहे हैं, चल रहे। आपने सोचा कि यही वो जगह है जहां से सेब आया, मैंने खाया। पलट के बाग में गए, वहां एक सैयद बुजुर्ग मिले जो अल्लाह के वली थे। आपने वाकया सुनाया, मैंने इस तरह सेब खाया, लिहाजा आप बाग के मालिक हैं, मुझे माफी दे दीजिए।
یہاں سے ہم دیکھیں نا، نعرہ ہمارا غوث اعظم کا ہے، لیکن میں آپ کو کہاں لے جاؤں گا وہ آپ کو آخر میں معلوم۔ سیب کی معافی دیجیے، میں نے بغیر اجازت کے سیب کھا لیا ہے۔ فرماتے ہیں الگ الگ روایتیں کچھ کتابوں میں، ایک کتاب میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا سیب کی اگر معافی چاہتے ہو تو 12 سال میرے پاس رہو اور باغ کا پہرا کرو۔ 12 سال آپ رہے، باغ کا پہرا کیا۔ جب 12 سال مکمل ہوئے آپ پھر پیش ہوئے، حضرت میرے 12 سال مکمل، کہا اب ایک شرط اور ہے، اگر وہ قبول کر لیں گے تو آپ کو سیب کی معافی دے دی جائے۔ دیکھیں ایک سیب کھایا بغیر اجازت کے، آج ہم کتنا کھاتے ہیں بغیر اجازت کے؟ آج ہم نے کبھی سوچا کہ ہمارے مال میں حرام آیا؟ آج ہم نے کبھی سوچا ہماری کمائی کہاں سے آتی؟ یا اپنی اولاد کو پوچھتے ہیں ہماری کمائی کہاں سے آتی؟ نہیں پوچھتے۔ کہا وہ شرط کیا ہے؟ کہ شرط یہ ہے میری ایک بیٹی ہے، وہ نہ دیکھ سکتی ہے، نہ سن سکتی ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ چل سکتی ہے، آپ کو اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، اگر آپ اس کے ساتھ نکاح کر لیں تو آپ کو سیب کی معافی مل جائے گی۔ سوچو ذرا، جوانی ہے، زندگی گزارنی ہے، اور کون سی شرطیں ہیں؟ آج اگر ہمارے درمیان یہ شرطیں آ جائیں تو کیا ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ پوری محفل میں سے اگر کسی کے پاس شرط ہے کوئی ایک قبول کرے گا؟ ہم نے تو نہ جانے یہ شرطیں قبول کرنا تو دور کی بات ہے، ہم کو نہ جانے کیا کیا چیزیں جو اسلام قرآن دین مصطفیٰ میں ہے ہی نہیں، ہم نے ان کو اپنایا ہوا ہے۔ دہیج کی لعنت ہمارے درمیان ہے، گاڑی مانگتے ہیں ہم، بائک مانگتے ہیں ہم، نہ جانے کیا کیا چیزیں شریعت کے مطابق ہے ہی نہیں ہمارے تو پتہ نہیں کتنے جو ہے آفر ہیں وہی پورے نہیں ہو پا رہے۔ ہم تو غریب کی پوری چمڑی اتاریں جب تک نہیں تب تک شادی کا نام نہیں لیتے۔ لیکن یہ غوث اعظم کے والد ہیں، آپ نے چند منٹ سوچا اور سوچنے کے بعد کہا ایک طرف تو ایسی عورت سے نکاح کا کی شرط ہے جو چل بھی نہیں سکتی، سن نہیں سکتی، بول نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی، لیکن ایک طرف پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ آخر میں آپ نے سوچا یہ جوانی ہے، 4 دن ہے، چلی جانے، یہ دنیا فانی ہے، کوئی بات نہیں، اگر معافی مل جائے سیب کی تو مجھے قبول ہے۔ نکاح کرا دیا گیا۔ فرماتے ہیں جب نکاح ہوا اندر تشریف لے گئے تو اندر ایک حسین جمیل عورت بیٹھی، جو شرطیں بتائی گئی وہ اس میں نہیں بلکہ بالکل تندرست تھی۔ آپ فوراً الٹے قدم واپس لوٹے، پوچھا وہاں تو کوئی اور ہوتا ہے؟ کہا نہیں، وہ آپ ہی کی بیوی ہے، میں نے جو بتایا تھا وہ دیکھ نہیں سکتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اندھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا ہے۔ میں نے جو بتایا تھا وہ سن نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہری ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج تک اس نے کلام بد اپنے کانوں سے سنا ہی نہیں ہے۔ جو میں نے کہا تھا وہ چل نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لنگڑی ہے، نہیں، آج تک اس نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا ہی نہیں۔ بتاؤ غوث اعظم کے نام کے نعرے لگانے والوں کس کی بیٹی آج ایسی ہے؟ پوری محفل میں کوئی ایک بتائے کس کی بیٹی آج ایسی ہے جو غیر محرم کو نہیں دیکھی ہے؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جس کے کانوں میں ایئر فون نہیں لگے؟ کس کی بیٹی ایسی ہے جو حرام گانے نہیں سنتی ہے؟ کس کی بچی ایسی ہے جس کی آنکھیں حرام اور گندی ویڈیو نہیں دیکھتی؟ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ باپ جو پیسہ کما کر لا رہا ہے، جو رات دن ایک کر کے ہزاروں کا موبائل خرید کر اپنی بچی کو ان گندے کاموں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ آہ کاش ہم کو آج اپنی بچی کو قرآن دکھانا تھا، ہم فلمیں دکھا رہے ہیں۔ ہم نے آج اپنی بچی کو نعت رسول سنانی تھی، ہم گانے سنا رہے ہیں۔ کون ہے اس طرح؟ جب ماں ایسی ہو جس نے زندگی میں غیر محرم نہ دیکھا، جب ماں ایسی ہو زندگی میں بد کلامی نہ سنی ہو، جب ماں ایسی ہو زندگی میں غیر محرم کی طرف ایک پاؤں نہ چلی ہو،
ऐसी माँ के बतनों से गौसे आजम पैदा होते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हम शिकायत करते, पीर साहब मेरा बेटा नमाज नहीं पढ़ता है, पीर साहब मेरा बेटा कुरान नहीं पढ़ता है, पीर साहब मेरा बेटा मेरे आगे बहुत बोलता है। बोलेगा नहीं? तुमने कितना शरीयत को पकड़ा है? बाप कितना पाबंद है नमाज का? बाप ने कितना कुरान की तिलावत करता है? जब बाप घर में बैठ के बेटे के सामने फिल्में देखेगा, तुम्हारा बेटा क्या तकरीर करेगा? जब बाप घर में बैठकर गाना सुनेगा, तुम्हारा बेटा क्या शायर इस्लाम बनेगा? जब बाप अजान हय्या अला सलाह हय्या अल फलाह की निदाएं सुनकर कंबल ओढ़ के फिल्म देखेगा, तुम्हारा बेटा के मैदान का गाजी बनेगा या वली पैदा होगा? नहीं नहीं नहीं, वली पैदा होने के लिए वो माएँ लाजमी है, जो माएँ कभी बद कलामी नहीं सुनती, जो माएँ कभी जो कुरान की तिलावत करने के बगैर सुबह कोई काम नहीं करती, ऐसी माएँ हो तो वली पैदा होते हैं। और फिर गौसे आजम की तरबियत देखें, हमारे बच्चों की तरबियत। आज हमारे बच्चों के सर पे जो बाल है ना, वो हिंदवाना रस्म पे कटे हुए हैं। हमको शरीयतन, जो शरीयत के मुताबिक बाल जुल्फे रखने का या काटने का हुक्म है, हमें वो पसंद नहीं है। हमको चाहिए न जाने कितने कितने स्टाइल बाल में है, कुफार की तरफ मुशाबत, यहूदी ईसाइयों की मुशाबत है, क्योंकि ये हमारा कसूर है, हमने अपने बच्चों को तरबियत नहीं दी। गौसे आजम की तरबियत बचपना है, आपको मदरसे में भेजा जा रहा है, मकतब में भेजा जा रहा है। वो गौसे आजम के लिए आवाजें लग रही, जब मदरसे में पहुंचते हैं आवाजें आ रही, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो, अल्लाह के वली के लिए जगह छोड़ दो। वही गौसे आजम दीन के लिए, जब आप नाजरा पढ़ते हैं, कुछ तालीम हासिल की, लेकिन इल्म दीन सीखना था। आपके वालिद मोहतरम दुनिया से चल बसे, थोड़ी उम्र हुई, माँ से इजाज़त चाहिए। आज हम इजाज़त लेते हैं, भाई कारोबार के लिए जा रहे हैं, दुआ करना, ये करना, लेकिन आपने फरमाया अम्मी जान मुझे बगदाद जाना है। कहा क्यों जाना? कहा बगदाद मुझे इल्म दीन सीखना है। माँ ने कहा बेटा तेरी जुदाई तो मंजूर है, लेकिन दीन से दूरी मंजूर नहीं। बगदाद में आए, जब घर से चले, काफिले चलते थे तब, काफिले के साथ चले, जब निकले एक मकाम पे पहुंचे तो डाकू पड़े, सारे काफिले को लूट लिया। गौसे आजम के पास एक डाकू आया, ए बच्चे तुम्हारे पास भी कुछ है? कहा हाँ मेरे पास है। कहा क्या? कहा 40 अशरफिया। एक डाकू आया, दूसरा यूं ही पूछते चले गए। कहा बच्चा होगा, यूं मजाक करता है। सरदार की बारी आई, उसको जब ये वाक़या सुना, उसने कहा बच्चे को मेरे पास है। जब गौसे आजम को उनके पास लिया गया, कहा बच्चे तुम्हारे पास कुछ है? कहा हाँ मेरे पास 40 अशरफियां हैं, मेरी माँ ने सदरी में मेरी बगल के नीचे सिली हुई है। जब सदरी को खोला गया तो 40 अशरफियां। कहा तुमने अपनी अशरफियां छुपाई क्यों नहीं? हम तो डाकू हैं, हम तो लूट रहे हैं, छुपाई क्यों नहीं? कहा छुपाई इसलिए नहीं कि जब मैं घर से निकला था, मेरी माँ ने कहा था बच्चे जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना, जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। मैंने इसलिए माँ से वादा किया झूठ नहीं बोलूंगा। अब ये डाकू का सरदार, इसकी आंखों से आंसू निकले। कहा तू ऐसा बच्चा जो माँ के वादे खिलाफी नहीं करता, हम कैसे बदनसीब हैं जो खुदा की राह में हम खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं, खुदा के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं। सब गौसे आजम के हाथ पे ताइब होकर आपने तौबा कर ली, और ये डाकू ने जो माल लूटा था सब वापस कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ आज हम कितने झूठ से दूर हैं। कोई भी कारोबार है, शुरू करने से हम पहले अगर 50 झूठ ना बोल लेना तो हमारा कारोबार चलता नहीं। और झूठे पे कुरान में बताया, झूठे पे अल्लाह की लानत होती है। बहुत सारी करामात आपने सुनी, ये करामात कब हासिल होती है? ये यूं ही थोड़ी आप जैसे आजकल चला है ना, पीर भी 10-10 अंगूठियां होंगी, 2-4 गले में लड़ियां होगी, और फिर हरा जुब्बा होगा, और फरमाया गया हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए हैं।
हमारे पीर साहब बहुत पहुंचे हुए, कहाँ पहुंचे हुए? जहन्नम में। कहाँ पहुंचे हुए? तुम्हारे घर झूठ बोलकर तुम्हारा माल लूटने पहुंचे हुए हैं और तुम्हारा ईमान तुमसे छीनकर जहन्नम में पहुंचाने वाले हैं। ऐसे थोड़ी पीर होते हैं। अगर पीर देखने हो ना जमाने में तो ताज शरिया को देख लो, पीर देखने हो जमाने में मुफ्ती आजम हिंद को देख लो, इमाम मोहम्मद रजा खान फाज़िल बरेलवी को देख लो। बेशक आज हमारे नारे सूखे नारे, खुदा की कसम मुझे बहुत दुख हुआ जब जोहर की अजान हुई, उससे पहले 50 बंदे बैठे हुए थे, अजान हुई तो नमाज में 20 खड़े नहीं हुए। क्या ईमान के बाद पहला फर्ज हमारे पे, पहला फरीजा नमाज नहीं है? ईमान के बाद पहला फरीजा नमाज नहीं है? तकरीर सुनना फर्ज थोड़ी है, नात पढ़ना फर्ज थोड़ी है, नमाज पढ़ना फर्ज है। गौसे आजम की पूरी तारीख पढ़ो, सारी दुनिया में गौसे आजम की शान में कोई आलिम ऐसा नहीं, कोई मुहद्दिस ऐसा, कोई मुहक्किक ऐसा नहीं है जो आपकी शान, करामात, तजल्लियात इल्म से इनकार करता हो। लेकिन कोई आलिम ऐसा भी नहीं जो ये कहता हो गौसे आजम ने एक वक्त की नमाज छोड़ी है। आपने सुना होगा शैतान एक बार आया गौसे आजम के पास, कहा है गौसे आजम मैं अल्लाह की तरफ से आया हूँ, आप पर आज की नमाज माफ है, आप आराम कीजिए, नमाज नहीं पढ़ना। गौसे आजम पीराने पीर फरमाते हैं तू मुझे शैतान लगता है, अल्लाह की तरफ से नहीं, तू मुझे शैतान लगता है। कहा क्यों? कहा जिसके लिए अल्लाह ने पूरी कायनात को पैदा फरमाया उस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए नमाज माफ नहीं हुई तो मेरे लिए नमाज माफ कैसे होगी? बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सूखे दावे करने वालों, आज वादा कर लो, गौस की गुलामी अगर हकीकी है, वादा करो नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। 2-3 के अलावा हाथ नहीं उठेंगे मुझे लगता है। वादा करो नमाज पढ़ेंगे। गौसे आजम आपके पास एक मुरीद आया ना, कहा हजरत मेरे घर में बेबरकती, मेरे घर में बीमार बहुत, आपने न तावीज दिया, न धूनी दी, न बत्ती दी, न खत्म बताया। फरमाया जाओ अपने घर के दरवाजे पे पर्दा लगा दो। क्या करो? घर के दरवाजे पर पर्दा लगा दो। अब ये शख्स आया, पर्दा लगाया, कुछ दिन बीते तो घर में बरकतें आना शुरू हो गई, बीमार जो थे वो तंदुरुस्त होना शुरू हो गए। कुछ माल जमा हुआ, न्याज ली, गौसे पाक के पास चले, न्याज पेश की और पूछने लगे हजरत ये पर्दे में क्या राज है, मुझे यही मालूम नहीं। गौसे पाक ने फरमाया तेरे घर में बरकत तो आई? हाँ बरकत आ गई। तेरे घर के बीमार ठीक तो हुए? हाँ ठीक हो गए। कहा सुन, तेरा मकान रास्ते पर है और रास्ते की तरफ ही तेरा दरवाजा है। दिन में इस रास्ते से जितने बेनमाजी गुजरते थे, बेनमाजी की नजर तेरे घर के अंदर पड़ती थी, उसकी नजर की वजह से तेरे घर की बरकत भी चली गई थी, तेरे घर में बीमारी भी आ गई थी। अब जब तूने पर्दा लगा दिया ना, बेनमाजी की नजर पर्दे पे पड़ती है, तेरा घर अंदर जो है वो सेफ हो। बेशक, बेनमाजी की नजर पर्दे पर पड़ती है, अंदर नहीं पड़ती है, इसलिए बरकतें आ गई। मैंने कहा है सूखे नारे लगाने वालों जो गौसे आजम की गुलामी का दावा करते हो, गौसे आजम फरमाए बेनमाजी की नजर अंदर आए तो बरकत खत्म हो जाए, बेनमाजी की नजर अंदर आए तो लोग बीमार होना शुरू हो जाए। जिस घर में 10-10 बेनमाजी लेटे हो, बरकत की कहां से ढूंढ रहे हो? पीरों के पास जाके अपना आप मत लुटाओ, घर में बरकत लानी है तो नमाज के पाबंद हो जाओ। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी बात कहकर आपसे गुजरना चाहता हूँ नमाज के ताल्लुक से। ये नमाज है ना, ये हमारे गुनाहों को मिटाती है। हदीस पाक में आता है इज़ा कब्बर अल अब्दु लिस्सलाह, जब नमाज के लिए बंदा अल्लाहु अकबर कहता है, यक़ूलुल्लाहु तआला लिल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता है, ए मेरे फरिश्तों, इरफाउ ज़ुनूब अब्दी अन रक़बती, मेरे इस बंदे के गुनाहों को उठा लो। क्या करो?
तमाम गुनाहों को उठा लो। कब तक? जब तक ये पाक साफ होकर नमाज पढ़े। अब फरमाया फरिश्ते इसके गुनाहों को उठा लेते हैं। जब ये नमाज से फारिग हो जाता है, नमाज पढ़ लेता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, ए मालिक मौला, तूने कहा था तब तक उठाओ जब तक कि नमाज से फारिग हो जाए। हमने इसके गुनाह उठा लिए, नमाज पढ़ ली, अनुईदुहा, क्या हम इसके गुनाहों का पलटा दें इस पर? अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फरिश्तों ला यलीकु बिकरमी, मेरी शान अब यह नहीं है कि मेरा बंदा मेरी बारगाह में खड़ा होकर कायनात की सारी चीज को छोटा कहकर अल्लाहु अकबर मुझे कह रहा है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कायनात के मुल्लाओं की या ठेकेदारों की तारीफ छोड़कर सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक मुझे कह रहा है। सारी हमद, सारी तारीफ कयामत का मालिक मदद मुझसे तलब रहा, सारी चीजों को छोड़कर मेरी तारीफ, मेरी सना कर रहा। अब मेरे करम को भी ये लायक नहीं कि मैं इसके गुनाह इस पे पलटाऊं। जाओ, मैंने इसको माफ कर दिया। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हम पता नमाज़ें छोड़कर अपनी कितनी बदनसीबी को दावत देते। फरमाते हैं जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ कुतुब में एक ही वाक़या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जिब्रील अमीन को पैदा फरमाया, फरमाते हैं अब फरिश्ता है। अलग अलग रिवायतें, एक रिवायत में है कि जिब्रील के 700 पर हैं, एक में है कि 300 पर हैं, अलग अलग रिवायतें हैं। फरमाते हैं जिब्रील नूरी मखलूक, खूबसूरत पैदा फरमाया। जिब्रील ने अर्ज किया, मालिक मौला, क्या तुमने मुझसे ज्यादा खूबसूरत भी कोई चीज बनाई है? क्योंकि मलाइका में अल्लाह ने उससे खूबसूरत कोई बनाया नहीं, सारे फरिश्तों का सरदार है जिब्रील अमीन। अल्लाह ने जब तारीफ फरमा दी तो इसने इसके शुक्राने में 2 रकात नमाज पढ़ी। कितनी? 2 रकात नमाज। और 40,000 साल में ये 2 रकात नमाज पूरी की। जब सलाम फेरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज किए, अल्लाह मैंने तेरी इबादत अच्छी की। अल्लाह ने फरमाया हाँ, बहुत अच्छी की। जब तारीफ हुई, कहा अल्लाह मेरी इस इबादत से ज्यादा भी कोई इबादत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया हाँ, तेरी इस इबादत से ज्यादा भी एक इबादत है, और वो इबादत में सारे नबियों को भेजकर जब आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भेजूंगा, वो इबादत उसकी उम्मत में रख दूंगा। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान। 40,000 साल में 2 रकत, आज हमारी 2 रकत 1 मिनट से पहले पूरी हो जाती है, क्योंकि हमको रस्म अदा करनी, नमाज थोड़ी ना पढ़नी। फरमाया ए अल्लाह, वो उम्मत मुस्तफ़ा का जो बंदा ये 2 रकत पढ़ेगा, इसके बदले तो उसे क्या अता फरमाएगा? अल्लाह ने फरमाया मैं उसको जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। क्या अता फरमाऊंगा? ये जन्नत में एक जगह है, एक वादी है, जन्नतुल मावा अता फरमाऊंगा। अब जिब्रील ने अर्ज की, अल्लाह मैं भी वो जन्नतुल मावा देखना चाहता हूँ जो तू उस बंदे को अता फरमाएगा। फरमाया जा देख। अब फरमाते जिब्रील ने जब पर खोला ना, 3000 साल की मुसाफत अदा पूरी हो गई, और यूं ही 300 साल उड़ते रहे। जब एक जगह एक मकाम पर जन्नत में बैठे, फिर अल्लाह से अर्ज किए, अल्लाह जो तू उस उम्मत मुस्तफ़ा के बंदे को 2 रकत के बदले जन्नतुल मावा अता फरमाएगा, क्या उसका आधा हिस्सा या उससे कुछ ज्यादा मैंने सफर तय कर लिया? आवाज आई है, जिब्रील अभी तो 300 साल ही उड़ा है, अगर 3000 साल भी उड़ेगा ना, उसका 10वां हिस्सा भी पार नहीं कर पाएगा। अब उलमा फरमाते हैं वो कौन सी नमाज है? बाज़ उलमा ने जिक्र किया है कि वो फजर की 2 सुन्नतें हैं। फर्ज का दर्जा आला है, सुन्नत उससे छूटी। वो फजर की 2 सुन्नतें हैं। जरा देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मुस्तफ़ा का तज़किरा कहाँ किया, और फिर उम्मत मुस्तफ़ा में कितनी फजीलत रखी है। कैसा है वो उम्मती जो फजर में सोकर ये फजीलत भी ज़ाया कर रहा है। आज गौसे आज़म का पैगाम यही है, हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएंगे, कहिए इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पक्का सुन्नी बनाएंगे,
ہم اپنی نماز دیوبندی کے پیچھے ضائع نہیں کریں گے. فی الحال تو پڑھتے ہی نہیں, جو پڑھیں گے تو وہ سنیوں کے پیچھے پڑھیں, اور وعدہ کرو نماز پڑھیں گے. کتنے لوگ ہیں جو وعدہ کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ علماء آپ کے پاس موجود ہیں. مفتی صاحب نے بتایا نا, جو چیزیں خدا کی قسم جو چیزیں کرنے کی ہیں نا, حقیقی بات جو دل پہ لگے وہی حقیقی بات. اپنے علماء سے جڑیے, نماز کے طریقے پوچھیے, وضو کے طریقے پوچھیے, اپنی اصلاح کیجیے. صرف نعتوں پہ ہم مچلیں گے یا واقعات سن کے مچلیں گے تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. واقعات ہاں غوث پاک کی کرامت ہے, حقیقت ہے, لیکن ہمیں کرامت سن سن کے اسی پہ تھوڑی بات بنی. ہم کو نمازی بننا ہے. غوث اعظم نمازی تھے, رمضان آئے تو روزے رکھتے تھے. وہ تو پہلے دن ہی فرماتے ہیں, غوث پاک یکم رمضان کو پیدا ہوئے تو ماں کا دودھ پینا صبح صادق سے چھوڑ دیا, اور جب افطار کا وقت تھا تب پیا. تو پہلی کرامت یہی ہے. لیکن آج ہم غوث پاک کے غلام ہیں لیکن روزے کہیں نہیں. بہانے ہزاروں ہیں. ہم ڈاکٹر سے پہلے دکھا لیتے ہیں, ڈاکٹر نے منع کیا. اللہ نے کہا روزہ رکھ, یہ کہتا ہے میرے کو ڈاکٹر نے منع کیا. اللہ کے حکم پر ڈاکٹر کو آگے لا رہا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ولیوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کے سامنے بچے بیٹھے ہیں, حافظ ہیں, امام صاحب ہیں. ابھی آپ کے قریب میں ادارہ کھولا ہم نے ٹانڈا میں, وہاں پر بچے ہمارے پاس مقیم ہیں. بہت سارے حضرات وہاں آتے بھی ہیں, سنتے ہیں, جانتے ہیں, دیکھتے ہیں. اپنے بچوں کو وہاں داخل بھی کروائیے, اور اس مدرسے کی جو ہے آپ تمامی حضرات جیسے بھی ہو وہاں تعاون فرمایا کرے, کیونکہ یہ اہل سنت والجماعت کا مدرسہ ہے. اللہ رب العزت ہمیں غوث پاک کی غلامی عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو ان تمام ولیوں کے صدقے میں معاف فرمائے, اور اس محفل کو قبول فرمائے.